Hello dear student. Now let's start your third chapter, synthetic fiber and plastics. This is your sixth lecture. Okay, look here. This is my profile. And then now let's start your chapter. I had already discussed the following topics related to this chapter: types of fibers, natural fiber and synthetic fiber or artificial fiber. In synthetic fiber, many types of categorized in synthetic fiber like nylon, rayon, acrylic. Okay, and I'm also told to you that about rayon, nylon, and polyester, and also acrylic fiber. So uh, in this lecture we talk about properties of plastic. In previous class, I am told to you that about the thermoplastic and thermosetting plastic. What is the thermoplastic and what is the thermosetting plastic? In this lecture, we discuss the uh, we discuss about properties of plastic. What is the property of plastic? Plastic is plastic is नॉन रिएक्टिव क्या होता है? हमारा जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल होता है एक तरीके का. प्लास्टिक इज अ लाइट स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक जो होता है हमारा बिल्कुल हल्का होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है उतना ही, और क्या होता है ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक क्या होता है वो आपका वैसे को वैसे ही पड़ा रह सकता है. ठीक है. Plastic is a poor conductor of heat and electricity. You already know that about plastic is a bad conductor of electricity and heat. Next topic is given here, some useful of uses of plastic. You also know that about uses of plastic. uh, what is the importance of plastic in our daily life? You already know that plastic find extensive use in the healthcare industry. Okay, plastic are used for the packaging of tablets and the medical instruments. आपको पता है सारा कुछ ये किस में पैकेजिंग जो होती है हमारी किस में होती है? प्लास्टिक में ही होती है. ठीक है. और प्लास्टिक जो होता है हमारा क्या होता है वो जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं यानी कि जिनके जितने भी आपने रैपर कवर देखा होगा सारे प्लास्टिक में उनको रखा जाता है. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज द यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल. सॉरी. टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक. टेफ्लॉन जो होता है हमारे एक तरीके का क्या होता है? स्पेशल प्लास्टिक होता है जो क्या होता है जिसमें क्या होता है ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. कह रहे कि ऑयल और वाटर जो होते हैं आपके वो क्या स्टिक मतलब कि उसमें पूरी तरीके से उस पर क्या होता है लग नहीं सकते आप, यानी बिल्कुल आपका आपने अगर देखा होगा प्लास्टिक का उसमें टम्बलर में अगर रखा हुआ इस तरीके का तो बिल्कुल क्या होता है उसके सरफेस से क्या होता है बिल्कुल अलग होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल. Fireproof plastic. Fireproof plastic synthetic fiber catches fire easily. The uniform of firemen have coating of melamine plastic to make the flame resistance. ये क्या होता है? हमारा जो फ्लेम होता है उसको क्या होता है? रेजिस्ट करता है. ओके, ये फायर प्रूफ प्लास्टिक होता है. ओके डियर स्टूडेंट, फायर प्रूफ प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली. आपको पता है जो सिंथेटिक फाइबर है जैसा कि आपको बताया गया था नायलॉन, वो क्या होता है कि फायर को इजीली क्या कर सकता है? कैच कर सकता है, पकड़ सकता है. द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक. जो फायरमैन होते हैं वो किस प्लास्टिक का यूज करते हैं? मेलामाइन प्लास्टिक का यूज करते हैं टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस. जिससे क्या होते हैं आग से क्या हो सकते हैं वो बच सकते हैं. उनको रजिस्टर का एक काम करता है रेजिस्टेंस. ठीक है, उस पर क्या एक अवरोधक का काम करता है आपका कौन? प्लास्टिक, मेलामाइन प्लास्टिक. Biodegradable substance, you already know that about biodegradable and non-biodegradable in previous class. Biodegradable are those material which easily decompose in
soil. Okay, and non-biodegradable are those material they do not decompose by bacteria. Okay, or in soil. Biodegradable substance, a substance which get decomposed through natural process such as the action by bacteria is called biodegradable. Example: peels of vegetables, food stuff, fruits, paper, cotton, cloth, wood, etc. Okay, dear student, you already know that about biodegradable and non-biodegradable. So non-biodegradable substances, a substance which is not easily decomposed or takes many years to get decomposed by natural processes, is termed as non-biodegradable. ओके, जो ऐसा मटेरियल जैसे कि लाइक जैसे आपका केन देखते हैं, प्लास्टिक है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो लंबे समय तक क्या हो सकते हैं, ये रह सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल टीन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, plastic and the environment. Plastic is a non-biodegradable material due to non-biodegradable property of plastics. Okay, it is very major problem of for environment. आपको पता है प्लास्टिक जो है इन दिनों कितनी जो है कि हमें प्रॉब्लम, अभी गवर्नमेंट ने इस पे प्लास्टिक पे बैन लगा रखा है, फिर भी क्या होता है, प्लास्टिक की का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए इस पे गवर्नमेंट में बैन लगा रखा है। Nowadays, plastic is a very popular and used for many purposes. As a result, we generate a large amount of plastic waste. इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होने की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है या फिर प्लास्टिक सब्सटेंस होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में क्या होता है, आपका कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंस प्लास्टिक हैज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी, सो प्लास्टिक वेस्ट इज अ गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द इन्वायरमेंट, इसलिए हमारे ये इन्वायरमेंट को क्या करता है, हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है। इट काजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, जिससे क्या होता है, बहुत सारे जो प्लास्टिक होते हैं उनको हमारी जो काऊ होती हैं वो भी क्या होती है, उनको खा लेती हैं, फिर उनको दिक्कत प्रॉब्लम आती है। और फिर अगर क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है जहाँ पे पड़ता है वहाँ की सॉइल की मिट्टी को, वहाँ को क्या फर्टिलिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अगर सपोज दैट कोई अगर जलाता है फिर भी वो क्या होता है, पूरी तरीके से आपकी जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, आपका डिकम्पोज नहीं होता, फिर से आपको इन्वायरमेंट को इस तरीके से मतलब प्लास्टिक आर मेनी वेज क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। कह रहे हैं कि बहुत सारे इस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट को या फिर हमारे लिए प्लास्टिक क्या होता है, हार्मफुल होता है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक, वी वुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें प्लास्टिक से क्या करना चाहिए, उतना हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। टू डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज on or road or on the road. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and decomposed of separately. कह रहा है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग रखना चाहिए और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उनको अलग रखना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ठीक है, जो गार्बेज होता है एक होता है आपका जिसमें एक गीला कचरा होता है, एक क्या होता है सूखा, यानी कि एक ड्राई वेस्ट होता है, और एक क्या होता है आपका, आपने देखा होगा इस तरीके का। ठीक है, 3R की बात करेंगे। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 3R? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। हमें ऐसा मटेरियल का यूज करना चाहिए जो रिड्यूस हो सके, फिर रीयूज हो सके और फिर रिसाइकल हो सके। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। एग्जाम्पल, वी शुड यूज क्लॉथ बैग। अगर कपड़े का हम क्या करते हैं, कपड़े का अगर बैग यूज करते हैं तो क्या होगा, अगर उसमें कोई सामान खरीदते हैं, लाते हैं, तो फिर से हम क्या उसको रीयूज कर सकते हैं और क्या रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, यानी कि रीयूज रीयूज यानी जो कपड़ा है, अगर कपड़े का सपोज दैट आपके पास कोई पैंट वैंट है, उसका क्या कर सकते हैं, आपका पैंट को काट करके हम कटिंग करके फिर आपने पहन लिया, उसके बाद फिर से हम थैला बना लिए, थैला यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, फिर से हम उसको रिसाइकल कर सकें। इस तरीके से आपने देखा होगा इस समय तो बहुत सारे जो ऐसे जो खराब कपड़े होते हैं हमारे घर पे, उनका दरी और कारपेट बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम 3R का मतलब समझ सकते हैं। 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके डियर स्टूडेंट, reuse we should reuse some plastic things and the container in our homes and office
for example empty plastic bottle and container should be used for keeping other items in the homes or kitchens. Recycle thermoplastic, you already know that about thermosetting plastic, thermoplastic, and that plastic are reused again and again. Okay, thank you, thank you for thank you for enjoying my class. Okay, uh, all of you try to understood this chapter, uh, and also try to uh, try to find question answer of this chapter. Okay, dear student, otherwise I am also provide to you question answer of this chapter. Okay, so bye.